हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243E एंड 243F। 243E सेज ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स एक्सेट्रा। जो 243E आर्टिकल बताता है पंचायत की अवधि या कार्यकाल के बारे में। नंबर 1, every panchayat unless sooner dissolved Number 1, every panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. Number 2, no amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a panchayat at any level which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause first. Number 3, the election to constitute a panchayat shall be completed. Number A, before the expiry of its duration specified in clause first. Number B, before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution. Number B, before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution. Provided that where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the panchayat for such period. Number 4, a panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued under clause first had it not been so dissolved. Article 243F. Article 243F. Disqualifications for membership. डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप के बारे में बात करता है ये 243F आर्टिकल। डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। नंबर 1, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of a panchayat. Number B, if he is so disqualified any or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the legislature of the state concerned, provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years. Number B, if he is so disqualified by or under any law made by the legislature of the state. Number 2, if any question arises as to whether a member of a panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause first, the question shall be referred for the decision of the such authority and in such manner as the legislature of the state may by law provide. मैं हिंदी में देख लेती हूँ इन दोनों आर्टिकल्स को।
अनुच्छेद 243वां पंचायतों की अवधि आदि। पंचायतों की अवधि आदि। नंबर 1, पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। तो जो पंचायत सिस्टम है, जो पंचायती राज व्यवस्था, तो उसके अंदर जो इलेक्शन जो होता है वो भी 5 सालों के लिए होता है। जैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, संसद के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसी तरह से जो सरकार की सबसे छोटी इकाई है पंचायत, तो डेमोक्रेसी की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज सिस्टम, तो उसकी ये बात की जा रही है कि पंचायतों की अवधि आदि के बारे में। प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। इसका यानी कार्यकाल जो 5 वर्ष तक है। नंबर 2, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। नंबर का, खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व। नंबर खा, उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा। परंतु जहाँ वे शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है 6 माह से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। नंबर 4, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती है। यदि वे इस प्रकार विघटित नहीं की जाती है। अनुच्छेद 243(4) सदस्यता के लिए निहरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहरित होगा। नंबर का, यदि वे संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहरित कर दिया गया है या कर दिया जाता है परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निहरित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नंबर खा, यदि वे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहरित कर दिया जाता है। नंबर 2, यदि ये प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो जाता है या नहीं, तो वह ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो ये तो था पंचायत के अंदर अनुच्छेद 243 ई और 243F के बारे में। तो कल मैं पढ़ूंगी 243 जी के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय भीम।